Student, this is the second video of class 6 chapter 3rd civics. The topic is our government. In this video we are going to start with democracy. Dear student, the most popular form of government today is democracy. It is a form of government where people participate in the governance of the country. Dear student, जो डेमोक्रेसी है वो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और डेमोक्रेसी में जो पीपुल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कंट्री के गवर्नेंस में. डेमोक्रेसी कैन बी ऑफ टू टाइप. इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. In a direct democracy, the people in a country directly participated in the governance. However, direct democracy is possible only in the countries with a small population. So, in direct democracy, people directly participate in the governance of country, but it is only possible in the countries with a small population, not in our country. Dear student, in our country, representative or indirect democracy is applied. Now, a more popular form of democracy is indirect or representative democracy. In this form of democracy, people choose their representative through election, who then form the government. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं या इलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन. तो फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा MPs, MLAs, तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के जिनको इलेक्शन के दौरान लोग चूज करते हैं और वो गवर्नमेंट को बनाते हैं और फिर वो गवर्नमेंट उस कंट्री को गवर्न करती है या स्टेट को गवर्न करती है. Thus, in a representative democracy, elections play an important role. इस वजह से इलेक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में. All adult citizens of the country have the right to cast vote, respectively of their caste, creed, gender, etc. Right to vote is called franchise. When all the citizens of country have the right to vote, it is referred to as universal adult franchise. Dear student, when all adult citizens of a country have right to vote, though the right to vote is called franchise, and if the all adult citizens of the country have right to vote, this is called universal adult franchise. Adult means a person who have completed the age of 18 years. Now we are going to know about universal adult franchise. A democracy is successfully only when the citizens have the right to vote. All citizens of India above 18 years of the age have right to vote. Universal adult franchise is thus a significant feature of the Indian democracy. It was adopted as soon as the Indian Constitution came into being. The first general election held in the country in 1952 were based on universal adult franchise. डियर स्टूडेंट, हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अप्लाइड है और ये हमारी कंट्री में सबसे पहले इस पे बेस्ड जो इलेक्शंस हुए वो इट वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप बिकॉज पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव फॉट फॉर देयर राइट टू वोट अर्लियर. ओनली द रिच एंड एजुकेटेड मैन हैज द राइट टू वोट. इट वाज बिलीव्ड दैट नाइदर टू पुअर नॉर वुमेन वर कैपेबल ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस और टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन. डियर स्टूडेंट, जो राइट टू वोट है जब शुरू में दिया गया तो ये सिर्फ जो उन्हीं लोगों को दिया गया दे हैव राइट टू, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी थी. उसमें जो पुअर्स हैं या जो वुमेंस हैं उनको ये राइट देना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उनको ये डिसीजन लेने का राइट नहीं होना चाहिए. सो द राइट टू वोट वाज नॉट नेसेसरी फॉर देम. It was only after long struggle led by social activists and great campaigners for women rights such as Emmeline Pankhurst that women got their right to vote. Today women in almost every country have voting rights. महिलाओं को ये जो राइट टू वोट है वो तभी एक लंबे स्ट्रगल के बाद मिला जिसको लीड किया एमिलिन पैंकहर्स्ट में, जो कि ब्रिटेन की थी. और आज विश्व के
मैक्सिमम कंट्रीज़ में जो वुमेन्स हैं उनको राइट टू वोट है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड केस स्टडी दैट इज सफ्रेगेट मूवमेंट। वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड to fight hard to gain their voting rights. In the middle of the 19th century, a group of women in Britain started the suffragette movement to demand voting rights. विश्व में महिलाओं को ये जो राइट टू वोट है ये बहुत ही स्ट्रगल के बाद मिला है। इसकी शुरुआत 19th सेंचुरी में हुई जब एक ग्रुप ऑफ वुमेन ऑफ ब्रिटेन स्टार्टेड सफ्रेगेट मूवमेंट टू डिमांड वोटिंग राइट्स। द मूवमेंट वाज लेड बाय एमिलीन पैंकहर्स्ट, who founded the Women's Social and Political Union. The party members often resorted to violent means such as smashing windows and assaulting police officers. They also sat on hunger strike and chained themselves to railing on the streets to gain public attention. Many of them were imprisoned. इस ग्रुप के लोगों को बहुत ही समस्याओं को झेलना पड़ा, उसमें से इम्प्रिजन मतलब उनको जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने हंगर स्ट्राइक्स की और रैलियां की सड़कों पे। इट वाज ओनली आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल दैट देयर डिमांड्स वर मीट, और एक लंबे स्ट्रगल के बाद उनकी जो डिमांड है उसको मान लिया गया। इन 1918 ब्रिटेन अलाउड वुमेन टू वोट ओनली इफ दे वर ओवर 30 ईयर्स एंड ओन प्रॉपर्टी। 1918 में सबसे पहले ब्रिटेन ने अलाउ किया राइट टू वोट फॉर वुमेन, लेकिन उसमें एक ये शर्त ये थी कि देवर ओवर 30 ईयर्स, मतलब उनकी उम्र 30 साल होनी चाहिए और वो किसी प्रॉपर्टी की ओनर हों। द USA एंड फ्रांस ग्रांटेड द वोटिंग राइट्स टू वुमेन इन 1928 एंड 1945 रिस्पेक्टिवली। इसके बाद USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस, इस कंट्रीज़ में इन वोट्स को बारी बारी से 1928 में इसे USA में लागू किया गया और फ्रांस में इसे 1945 में लागू किया। तो इस तरह से इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई डाउट है या कोई अदर प्रॉब्लम है तो उन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।